everyone, welcome back to my YouTube channel. Here I am, Jasnaaz Kaur, pursuing BCom Honours from University of Delhi, Shri Guru Gobind Singh College of Commerce. So the last part of this video, if you have watched, was having everything about my journey and everything taking care of my 11th class as well as my plus 2 class. What I did, what was the dream and what was the basic reasons behind choosing Delhi University as my career option. But moving towards part 2, I'll go more brief into the reason why DU. So let's start. So I have curated basic 8 to 9 reasons, 8 to 9 points I have created that will be clearing you why DU is the best and why DU is opting as for a career option. So let's move forward. I have curated some points that are as follows. So the first point is the academic reputation. The academic reputation of Delhi University is indeed the best. Delhi University is one of the most prestigious universities of this world. इसकी जो भी study levels होते हैं, they are a very good scale. They are on a very good scale. Alongside this, I will start concluding this point कि I personally feel कि University of Delhi में जो society culture है, that is a very good point and very good differentiator that differentiates the University of Delhi from all the local universities or the universities of the country. The DU, very top-notch university, makes sure that the students take part in this society culture and learn a lot, the basic skill set. So the main point that you need to take it into your mind is that only studies are not enough. ठीक है? In your local colleges, this is a very big differentiator that only studies will not help you develop your personality, enhance your personality. And in University of Delhi, you are able to take part into societies, you are able to lead the group, you are given so much skills like you learn leadership, you learn teamwork, you learn how to communicate with everyone, you network a lot. Networking basically means creating your links. आप सबके साथ अपने links create करते हैं, आप अपने senior से guidance लेते हैं, आपको काम करना आता है, आपके colleges में जो events होते हैं आप उनमें lead करते हैं, आपको एक ड्यूटीज़ दी जाती हैं. इसी से जो आपके स्किल सेट है वो आपके अंदर पूरी लाइफ के लिए आ जाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिफरेंशिएटर पॉइंट. Coming towards the second point, that is the quality of students due to high cutoff. This is a very important point that you should consider. University of Delhi में admission लेना is not an easy thing. It comprises only a quality of students, only the best students are given admission in such colleges, keeping apart the lower colleges, high ranked colleges that are not good. High ranked colleges means after, you can say, top 30, all the low ranked colleges or the high ranked colleges, you can say according to your philosophy, दैट कम्स. तो उनके अंदर तो देखो जिनका स्कोर कम होता है CUET के अंदर उनको वो वाले कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है. बट एज आई ऑलरेडी स्टेटेड इन पार्ट 1 ऑल्सो दैट हर एक DU का कॉलेज अच्छा नहीं है. DU में पार्ट लेना, DU में एडमिशन लेना का फ़ायदा सिर्फ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने से ही है. तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं हमें पता लगता है कि जैसे जैसे कोई भी स्टूडेंट अगर DU के अंदर एडमिशन ले रहा है इसका मतलब है कि दे हैव क्लियर्ड अ वेरी हाई कट ऑफ एंड दे हैव been through a rigorous procedure of admissions that are done with each and every student. So there is a very good quality of students that you roam around. आप जो जिस कॉलेज में भी जाते हो आपको बहुत अच्छा क्राउड मिलता है, that are all study oriented, क्योंकि वो बहुत पढ़ के, हर एक बच्चा बहुत पढ़कर ही उस कॉलेज में एडमिशन लेता है एंड आपको उन्हीं के साथ पढ़ने को मिलता है, उन्हीं का स्किल सेट आपको मिलता है, आप उनके साथ रहते हैं, वैसा ही एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है. और वहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता जो पढ़ने के मोटिव से नहीं आया, क्योंकि अगर ऐसा कोई बच्चा होता तो उसको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन ही ना देती. Coming towards the third point is a very good point, that is the campus culture. Indeed, the campus culture of University of Delhi is the best. I am right now in Shri Guru Gobind Singh College of Commerce. The campus culture, and one more thing, the campus is the best of Shri Guru Gobind Singh College of Commerce out of all the DU colleges, even the first rank, that is Shri Ram College of Commerce, or even any other college. So this is a differentiator point. I am not talking about whole DU, I am just talking about my college.
that at this point of time, that is SGGSCC. So it has the best campus infrastructure across whole DU. So the campus culture is very nice among DU, as the students are very keen to learn new things. You get to know more about them, you make new friends, and there is a very good campus culture due to a good quality of students, as stated in point 2. Coming towards the fourth point, that is द फेस्ट एंड द सोसाइटीज़. बेसिकली जो सोसाइटी का मैकेनिज्म था वो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट एकेडमिक रेपुटेशन के साथ ही आपको क्लियर कर दिया था, लेकिन मैं एक बार फोर्थ पॉइंट में आपको फिर से लेती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है उसके अंदर कई सारे फेस्ट भी होते हैं, एंड ऑन द अदर हैंड सोसाइटी कल्चर इज़ ऑलवेज द बेस्ट, ऑलवेज टॉप नॉच इंडीड. लेकिन इसके साथ में आपके पास फेस्ट कल्चर भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एनुअल फेस्ट होते हैं हर कॉलेज के, क्रॉस रोड्स एंड अदर कॉलेजेस, हर एक कॉलेज का अपना अपना फेस्ट होता है, जिसके अंदर सिर्फ DU होल DU में से ओनली ID कार्ड के बेसिस पे आपको उनके फेस्ट में एंट्री मिलती है. तो फेस्ट कल्चर बहुत अच्छा है. आप ये मत सोचिए कि DU में सिर्फ पढ़ाई है, DU इज़ ऑल्सो फन थिंग. इसके साथ पढ़ाई के साथ साथ इसके अंदर फ़न बहुत ज़्यादा है. आपको नेटवर्किंग करने को मिलती है, आप दूसरे फेस्ट में जाते हैं, पार्टी कल्चर बहुत अच्छा है, एंड इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पॉइंट जो है वो क्रिएट होता है. सो एक फ़न फैक्टर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, हम ये नहीं कहेंगे कि एक बार आप हाँ इसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, हाँ इसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बट एडमिशन लेने के बाद फ़न लाइफ भी बहुत ज़्यादा है. Coming towards the fifth point, that is the affordable education. Yes, it is very important. DU में आपकी जो एजुकेशन है तो बहुत टॉप नॉच, लेकिन ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बहुत अफोर्डेबल एजुकेशन है. आज की डेट में आप कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके देख लीजिए, जो एजुकेशन कॉस्ट है दैट इज़ वेरी हाई. कोई भी डिग्री में लेने के लिए अगर वो आप गुड इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आपको कुछ भी दे रहे हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. जो इनकी एजुकेशन है दैट इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर ऑल द क्लासेस ऑफ द सोसाइटी. इन्होंने काफ़ी सीट्स काफ़ी रिजर्व्ड क्लासेस के लिए भी रखी होती हैं, एंड ऑन द अदर हैंड जनरल कोटा की तो सीट्स होती हैं. तो जो अफोर्डेबल एजुकेशन का पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेने का मौका मिलता है, और आपके जो फंड्स हैं, आपके रिसोर्सेज हैं, वो भी इतने यूज़ नहीं होते. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ लाइफ इन दिल्ली. यस, वाई DU का मेन आंसर इज लाइफ इन दिल्ली. दिल्ली की आपको लाइफ में रहने को मिलता है इफ़ यू टेक पार्ट इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. If you take admission in University of Delhi, you get to see the insides of Delhi. That is the capital of India. तो वैसे ही बहुत बड़ी सिटी है, enormous सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, काफ़ी फास्ट सिटी है. तो आपको इनके साथ कोप अप करने का भी मौका मिलता है. लाइक माई पेरेंट्स ऑलवेज सेड कि यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द पीपल इन दिल्ली. वो बहुत फास्ट हैं, वो किसी को कुछ समझते नहीं हैं, लाइक दिस. तो इट्स लाइक इट इज़ अ पर्सनल एटीट्यूड ऑफ एवरीवन. मैं ये नहीं कहूँगी कि हर बच्चा कोप अप कर लेता है. मैंने कर लिया, कुछ बच्चे कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं. सो आई विल नॉट डीमोटिवेट. तो अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को और इन्हांस करना है, आपको दिल्ली की लाइफ ज़रूर देखनी चाहिए. आपको मेट्रो में ट्रैवल करने को मिलता है, आप टाइम से ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हो, आप हर चीज़ टाइम से करने की कोशिश करते हो, आप लोगों से जब बात करते हो आपकी वैसे ही जो आपकी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, बिकॉज यू गेट टू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद एवरीवन. जो कि आई फील कि कंफर्ट ऑफ होम में आपको वो चीज़ बहुत लैक कर जाती है. जब आपको हर चीज़ आपके कंफर्ट में मिल जाती है, आप जो खाना चाहते हो आपको वो मिलता है. ये सब चीज़ें जो मैं अगली वीडियो में भी मेरा टॉपिक रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड. तो उसमें मैं डिस्कस करूँगी एवरीथिंग अबाउट लिविंग इन दिल्ली. बट आई वुड से कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मेक्स यू an all-rounder in all aspects of your life that creates a long-lasting effect for your remaining life and new endeavors. So coming towards the next point, that is the career opportunities. Yes, the career opportunities by taking admission in Delhi University are enormous. हर अच्छा कॉलेज, आई विल अगेन से, हर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने से आपका करियर बहुत इन्हांस होता है. क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड जो कॉलेजेस होते हैं, अगर मैं सिर्फ कॉमर्स की बात करती हूँ, तो कॉमर्स रिलेटेड कॉलेजेस में अगर आप लोकल कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो
from there the partnership you can say the placement prospects are very low, like you don't get good placements. But from this University of Delhi, if you are taking admission in a good college, in a highly reputed college, they already calls upon some various placement companies like Deloitte, KPMG, Airtel, etc etc. ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा कितनी कंपनीज आती हैं, दैट ऑफर्स यू गुड पैकेज। तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं अगर आपकी ऑन कैंपस प्लेसमेंट लग जाए। लेकिन इसके लिए आई ऑलरेडी सेड यू नीड टू बी एन ऑलराउंडर। हर चीज़ में अच्छा एंड हर चीज़ में बेस्ट बन के दिखाना पड़ेगा अगर आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट चाहिए। तो ये जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ का एज है ये आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ज़रूर मिलता है। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। आई विल नॉट से कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे फोकस करता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली काफ़ी सारे पॉइंट्स पे फोकस करता है। आपकी हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी एज इन रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुआ था जिसके अंदर यू वर गिवन एन ऑप्शन GEC, AEC and VAC, that are various elective subjects that you are being offered out of the core subjects. Keeping aside, I'll explain you. जो आपके DU में आपका कोर्स होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई BCom ऑनर्स स्टूडेंट है, उसके 4 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज अकाउंट्स, सेकेंड इज बिजनेस लॉ, थर्ड इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस। दीज आर द 3 कोर सब्जेक्ट्स। आउट ऑफ देम द अदर कोर सब्जेक्ट्स, they are also called as the core subjects, but they are the elective courses. That is, you are given an option to decide what subject you want to study. तो इससे क्या होता है, हर सेमेस्टर में आप एक न्यू कोर्स ऑप्ट करते हो। जैसे कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में GEC कोर सब्जेक्ट जो होता है मैंने लिया था एसेंशियल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दैट इज़ एन इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट। उसके बाद जब हम आ जाते हैं AEC एंड VAC, दैट इज़ एडिशनल इन्हांसमेंट कोर्स एंड वैल्यू एडिशन कोर्स। ये दोनों कोर्सेज के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये आपको यूनिवर्सिटी या आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज वाले ही पूछते हैं, आपकी प्रेफरेंस पूछते हैं जो आप उस सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हो। तो ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है फ्रॉम ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़। University of Delhi is the only university that gives option to select your own subjects and the courses. जैसे कि आप एक सेमेस्टर में ले सकते हो इंग्लिश इन्हांसमेंट। इससे क्या होगा, यू गेट टू लर्न मोर अबाउट इंग्लिश, यू स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। एक जगह पे आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स मिलता है। ये सब आप सिर्फ एक सेमेस्टर में कर सकते हो। इट मीन्स अगर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में डिजिटल मार्केटिंग लिया था एज माई सब्जेक्ट एंड इन द अदर सेमेस्टर आई कैन नॉट टेक डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव टू टेक एनी अदर कोर्स। तो इससे हमारे 2 पॉइंट्स फुलफिल होते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट इज़ आपको एक वेराइटी ऑफ कोर्सेज पढ़ने को मिल जाते हैं, आप अलग अलग चीज़ें समझते हो। मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर चुकी हूँ, अब सेकेंड सेमेस्टर में हो सकता है मुझे पब्लिक स्पीकिंग मिले तो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग में भी हेल्प हो जाती है। इससे क्या होता है, आप अलग अलग कोर्सेज के बारे में समझते हो एंड हर सेमेस्टर में आपको एक अलग कोर्स ऑप्ट करने का फ़ायदा मिलता है। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो दैट इज़ अ बिगेस्ट एज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ये चीज़ किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है कि आप अपने कोर्स खुद सिलेक्ट कर सको आउट ऑफ द कोर्स सब्जेक्ट्स। सो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने काफ़ी 8 to 9 पॉइंट्स जो थे मैंने कोशिश की है सारे पॉइंट्स को कवर करने की। एक सेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेने की कोशिश की है, दैट वाज ओनली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ना कि मैंने अपने कॉलेज की बात करी है, ताकि आपको एक सेंट्रलाइज्ड एंड अ जनरलाइज्ड अप्रोच मिल सके कि हाँ ऑल ओवर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कैसी है। क्योंकि सिर्फ कॉलेजेस अलग होते हैं, उनका सोसाइटी कल्चर अलग अलग होता है, पढ़ाई हर कॉलेज में सेम होती है, सब्जेक्ट्स हर कॉलेज में सेम होते हैं एंड प्रोसीजर भी हर कॉलेज का सेम होता है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आई फील कि कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प किए होंगे जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि क्यों यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ से या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कॉलेजेस कैसे बाकी सारे कॉलेजेस से अलग है। ये सारे पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जो मेरे को मेरे एडमिशन से पहले किसी ने नहीं बताए थे। मुझे इसके बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसे जो DU के कॉलेजेस हैं उनके अंदर कोई सोसाइटीज़ भी होती है, उनके अंदर फेस्ट भी होते हैं। लेकिन आई फील कि इस वीडियो के थ्रू कोई न्यू एस्पिरेंट्स है, CUET एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं DU में जाना, तो ये सब पॉइंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं इन डिसाइडिंग कि हाँ ये पॉइंट्स हैं
through which you can decide कि हाँ why I want to go to DU, as the title suggests, why DU. तो ये सारे पॉइंट्स आर रियली अ डिफरेंशिएटर दैट मेक्स यू डिसाइड कि हाँ मुझे मेरे लोकल कॉलेज में ये मिल रहा है एंड द DU इज गिविंग मी दिस. So you just need to work hard, you just need to be more serious towards your career if you are in your +1 or +2 and aiming towards DU. Believe me, entering into DU will really change you and your life, and your parents will be super proud of you. So I will end this video at this point. So I hope you liked the video. If you liked the video, please hit the like button and don't forget to subscribe. Stay tuned for the next part of this Delhi University series. Thank you so much. I've been on my spaceship counting stars.